Hello students, I am going to continue with the chapter equation 1 variable of 8th standard, practice set 12.2 and example number 6. So the example is some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama were sold at a theatre. The number of tickets of rupees 200 sold was 20 more than the number of tickets of rupees 100. The total amount received by the theatre by sale of tickets was rupees 37,000. Then find the number of rupees 100 tickets sold. तो जो एग्जांपल हमें दिया है वहाँ पे कुछ ऐसा हमें दिया है कि एक थिएटर में एक ड्रामा है और वहाँ पे जो टिकट्स है वो है 200 रुपीज़ के, कुछ टिकट्स है उसके और 100 रुपीज़ के हैं. तो जो 200 रुपीज़ के जो टिकट सोल्ड हुए हैं वो 100 रुपीज़ टिकट से 20 ज़्यादा है और जो सब टिकट्स बेच के जो अमाउंट रिसीव हुई है वो है 37,000. तो 100 रुपीज़ के कितने टिकट सोल्ड हुए हैं वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें ये पता नहीं है कि 100 रुपीज़ के टिकट कितने हैं, तो इसके लिए हमने कंसिडर किया है कि नंबर ऑफ रुपीज़ 100 टिकट सोल्ड इज इक्वल टू एक्स. So the number of tickets of 200 it is more than 20, so we can write it, that is the number of rupees 200 tickets sold, it is x plus 20. 100 रुपीज़ के टिकट्स x है और 200 रुपीज़ के टिकट्स इससे 20 से ज़्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे x plus 20. एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ द टिकट इज़, तो ये दोनों मिला के जो अमाउंट हमें मिली है वो है 37,000. तो 100 रुपीज़ के एक्स टिकट सेल हुए तो एक्स को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 100x, एंड 200 रुपीज़ के जो टिकट सेल हुए हैं वो है x plus 20, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 200 रुपीज़ से. एंड ये दोनों बेच के जो अमाउंट मिली है वो है 37,000. सो वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस वे, दैट इज 100x plus 200 इंटू ब्रैकेट x plus 20 is equals to 37,000. So dividing both sides by 100 to reduce this amount. So after dividing this we will get x plus 2 into, that is 200 को हमने 100 से डिवाइड किया तो 2 into bracket x plus 20 is equals to 370. So x plus 2x plus 40 is equals to 370. So 1x plus 2x, that is 3x, is equals to 370 minus 40. So here we get, that is 3x is equals to 330. So x is equals to 330 upon 3, that is x is equals to 110. And so the number of rupees 100 tickets, that is 100 रुपीज़ के जो टिकट सोल्ड हुए हैं वो कितने हैं, that is 110. Now the question number 7. So of the three consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than the 4 times the greatest number. Find the numbers. Let the three consecutive natural numbers will be x, x plus 1 and x plus 2. So इसमें से जो smallest number है वो है x, उसके बीच का है x plus 1 and the greatest number is x plus 2. तो हमें जो condition दी है वो है out of these three numbers the smallest number is 9 more than the 4 times the greatest number. तो ये जो छोटा वाला नंबर है वो 4 times हम greatest number लेते हैं, उससे 9 से वो ज़्यादा है. So we can arrange the example like this way, that is from given condition the 5 times the smallest number, that is 5x, and 4 times the greatest number, that is 4 into bracket x plus 2. So 5x is greater than x 4 into x plus 2 by 9. So we can write this like this way, that is 5x is equals to 4 times the greatest number, that is x plus 2 into 4 plus 9. मतलब ये छोटा वाला जो नंबर है वो उसका 5 टाइम्स बड़े वाले नंबर से 4 टाइम्स प्लस 9 से 9 का इतना जो है. तो 5x is equals to 4x मल्टीप्लाइंग द ब्रैकेट, सो 8 प्लस 9. सो 4x हमने इस साइड को ले लिया, 8 प्लस 9 दैट इज 17. सो x इज इक्वल्स टू 17 एंड x हमने कंसिडर किया था स्मॉलेस्ट नंबर को. सो x इज इक्वल्स टू 17. उसके बाद जो नंबर है वो x प्लस 1 दैट इज 18 एंड x प्लस 2 दैट इज 17 plus 2 that is 19. So the smallest number is 17 and the greatest number is 19.
Next, the example number 8. Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaired it, spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss, no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. So let the cost price of the bicycle is equals to x. हमने जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट. मतलब राजू ने अमित को एक बाइसिकल सोल्ड किया है और इससे उसको 8% प्रॉफिट हुआ है. तो अमित ने क्या किया, उसको रिपेयर किया. अमित रिपेयर इट एंड स्पेंडिंग रुपीज़ 54. उसके ऊपर उसने जो रिपेयर करने में जो खर्च किया है वो है 54 रुपीज़. एंड देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल एंड उसके बाद उसने निखिल को वो साइकिल 1134 में बेचा है विथ नो लॉस नो प्रॉफिट. उसको लॉस भी नहीं हुआ, उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ. देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इन. तो राजू ने वो कितने में परचेस किया था वो हमें फाइंड आउट करना है. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल वी डोंट नो, सो इट इज़ एक्स. एंड राजू सोल्ड हिज बाइसिकल टू अमित. फर्स्ट राजू ने अमित को वो 8% प्रॉफिट से बेचा था. तो Raju sold his bicycle to Amit at 8% profit. So 8% profit on rupees x is given by x into 8 upon 100, that is 2x upon 25. So Raju sold the bicycle to Amit for rupees x plus 2x upon 25. तो राजू ने जो अमित को साइकिल बेची है वो है बाइसिकल का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था x, और उसके ऊपर उसको जो प्रॉफिट हमने कंसिडर किया है वो जो फाइंड आउट किया है दैट इज 2x अपॉन 25. तो इस अमाउंट से उसने अमित को बाइसिकल बेची. मतलब कितने में बेची? सो हियर वी टेक द एलसीएम. सो 25x प्लस 2x दैट इज 27x अपॉन 25. तो राजू ने अमित को इतने में वो बाइसिकल बेची है. अभी अमित ने क्या किया, उसके ऊपर 54 रुपीज़ रिपेयरिंग में खर्च किया. So the cost of the bicycle for Amit is 27x upon 25 plus 54. मतलब ये तो जो सोल्ड की थी बाइसिकल तब उसका प्राइस था, लेकिन उसने उसके ऊपर रिपेयर करने में इतने पैसे खर्च किए दैट इज़ 54. तो टोटल कॉस्ट हुआ 27x अपॉन 25 प्लस 54. अभी इसके बाद उसने वो साइकिल निखिल को बेची है. अमित सोल्ड दिस बाइसिकल टू निखिल फॉर रुपीज़ 1134 विथ नो लॉस नो प्रॉफिट. मतलब 27x अपॉन 25 प्लस 54 इज इक्वल टू 1134. अभी ये जो है वो इस साइड को जाएगा. तो ये प्लस है तो यहाँ पे जाके वो माइनस होता है. आपको पता है जब भी हम इस साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है. सो 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1134 माइनस 54. So 27x upon 25 is equals to 1080. So x is equals to ये जो 27 upon 25 क्वान्टिटी है वो यहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगी. तो इट इज़ 25 upon 27. So x is equals to 40. So यहाँ पे हमने रिड्यूस किया उसको और आंसर मिला 40 into 25. So the answer is x is equals to 1000. मतलब the cost price of the bicycle is 1000 rupees. Now see the example number 9. Cricketer scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match so that the average of the runs in the 3 matches is 230. Example मैं repeat करती हूँ. The cricketer scored 180 runs in the first match. एक क्रिकेटर है उसने फर्स्ट मैच में 180 रन्स निकाले हैं एंड सेकेंड मैच में 257 रन्स उसने निकाले हैं. एंड फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ द 3 मैचेस विल बी 230. तो तीसरे में उसने कितने रन्स निकाले हैं ताकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मैच का जो एवरेज आएगा वो कितना होगा 230 होगा. तो उसने थर्ड मैच में x रन्स निकाले ऐसे हम कंसिडर करते हैं. सो द क्रिकेटर स्कोर x रन्स इन द थर्ड मैच. सो द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इज फर्स्ट मैच का है 180, सेकेंड का है 270 और थर्ड का है x. तो हमें एवरेज दिया गया है ऑलरेडी. सो द एवरेज ऑफ द 3 मैचेस इज 230. सो टोटल ऑफ द 3 मैचेस इज इक्वल्स टू 230 इंटू 3 दैट इज 690.
सो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू 690 माइनस 180 माइनस 257. So x is equals to 690 minus 180 minus 257 is equals to 253. तो ये जो मैंने निकाला है वो हम इस अलग तरीके से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक मेथड आपको बताई है. आपने ये सीखा है कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं. देर आर 3 मैचेस, तो 1 2 3 मैचेस डिवाइडेड बाय 3 मैचेस है, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया है. तो फर्स्ट मैच में उसने 180 रन्स निकाले थे, सेकंड में 257 और थर्ड में हमने कंसिडर किए थे x. तो एवरेज हमें दिया है दैट इज़ 230. इन दोनों का एडिशन हुआ 437 प्लस x अपॉन 3. तो ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा. सो 230 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 437 प्लस x. तो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ 690 इज इक्वल्स टू 437 प्लस x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये प्लस है, यहाँ पे जाके वो माइनस होगा. 690 minus 437, so x is equals to, the answer is 253. So the same answer we get here, and so the cricketer should score the 253 runs in the third match. So this is all about the practice set 12.2. so here is the end of this chapter. The last example, that is third example, is for your homework, and in next lecture we will see the new chapter. Thank you.